ज्ञानम के प्लेटफॉर्म पे आपका वेलकम करता हूं। तो स्टूडेंट्स आज हमारा जो सेशन रहेगा पंजाब पटवारी ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁਝ ਬਲੈਂਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਪੀਪੀਟੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। 20 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਸੇਮ ਉਹੀ ਗੱਲ है। ਤੁਹਾਨੂੰ पिछली क्लास में भी दसा सी, आज दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि 2 जैन से हमारा जो है साडा जेड़ा बैच है पंजाब पटवारी ਲਈ ऑनलाइन ਤੇ ऑफलाइन दोनों ही मोड ਤੇ ਆਪਾਂ स्टार्ट कर रहे हैं। if you people are willing, if you found these videos helpful, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਬੈਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ 2 ਜਨਵਰੀ 2023, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਗਿਵਨ ਨੰਬਰਸ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਇੱਥੇ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਿਆਨਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਇਹ ਜੁਆਇਨ ਸਕਸੈਸ ਲਾਈਵ ਬੈਚ ਰਹੂਗਾ ਸਾਡਾ ਆਨਲਾਈਨ ਲਈ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸਿਸ ਦਵਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰੀਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ 20 तक कर ले सी, इतो आगे आज आपा बदलना है, ठीक है। 21 क्वेश्चन नंबर पे मैं जा रहा हूं। ये इथे तक आपा कितना सी, आई थिंक 21st क्वेश्चन भी आपा कर लिया सी, और मैं फिर दोबारा रिपीट कर लिया स्टेटमेंट सेइंग 21st, ठीक है। कहता ही डैश अ लाई इफ यू हैड नॉट बीन देयर। पटवारी दा जेड़ा पिछले साल 2021 दा पेपर होया सी उदे मेंस च ये ट्रिक आया है। द पी ट्रिक प्लस वी वाले दा इस क्वेश्चन दा जेड़ा कांसेप्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, राइट। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਨ ਪਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਹੈਡ ਬੀਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਡ ਬੀਨ, ਬੀਨ ਕੀ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੀ ਦੀ, ਬੀ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਵਾਜ਼ਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਬੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੀਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਇਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ, ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਫ ਕਲੌਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਕਲੌਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। क्लॉज चैप्टर ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਂਦਾ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਲੌਜ਼ਸ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਪਰੋਬੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਟ੍ਰਿਕ ਬਾਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਫ ਕਲੌਜ਼ 'ਚ ਜਾਂ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਕਲੌਜ਼ 'ਚ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਨਸਰ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਥਰਡ ਫਾਰਮ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਪਲੱਸ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈਡ ਪਲੱਸ ਥਰਡ ਫਾਰਮ। ਇਹ ਟ੍ਰਿਕ आंसर सी है जी। he would have told a lie if you hadn't been there, right। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਕਲੋਜ਼ਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਇਹ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਹੁਣ ਆਏ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਨਸ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਮਿਸਿੰਗ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਵਰਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਫॉर, ठीक है। मान लो पुलिस कोई बंदा मिसिंग है, पुलिस घर आई तो कहते हैं कि फॉर हाउ लॉन्ग हैज द मैन बीन मिसिंग। पुलिस वाले ने सवाल किया कि फॉर हाउ लॉन्ग हैज द मैन बीन मिसिंग, तो तुसी आगे तो आंसर करो कि राम हैज बीन मिसिंग फॉर द लास्ट 24 आवर्स, राइट। द ड्यूरेशन दे लिए स्टूडेंट्स ਆਪਾਂ लगाते preposition for, ध्यान रखिए। आगे ये सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो गया गलती नाल। ये देखो जी, कहंदा the river flows dash that bridge, मतलब that bridge, उस ब्रिज तो थल्ले तो रिवर बहती है, ठीक है। तो ऑब्वियस है इथे आपा की लगाना, बिलो लगाना है, अंडर लगाना है, इनटू लगाना है, इनटू ते टू लगाने दी इथे कोई सेंस ही नहीं है, बिलो भी नहीं लगता। अंडर दैट ब्रिज, पुल दे थल्ले तो ही नदी फ्लो होएगी, तो इथे सिंपल प्रोपोजिशन आएगी साडी अंडर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24। जय इंसिस्टेड, राइट। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਿਸਟ ਵਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਔਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਵਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਔਨ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੋਰਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਿਸਟਡ ਔਨ ਤੇ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਔਨ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਇਨਸਿਸਟਡ ਔਨ ਸੀਇੰਗ ਦਾ ਪੇਪਰਸ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸਾਡਾ A। आगे चलिए जी। I want to go, I want to go dash my friend's birthday party. So I want to go to, actually ये जो to ਹੁੰਦਾ
डायरेक्शन दी प्रपोजिशन हुंदी है टू जद भी ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਕਾਲਜ आई वेंट टू कॉलेज तो इत्थे मतलब सानू क्लियर है कि तुसी कॉलेज गए तो कॉलेज इंसान किस वास्ते जांदा है पढ़ाई करने वास्ते ठीक है जी ता टू लगाने तो की हुंदा है कि डायरेक्शन दिशा ते दशा दोनों ही कन्फर्म हुंदी है थोड़ी मंजिल भी उत्ते क्लियर हो रही है लेकिन जब आप इत्थे टुवर्ड्स लगाई है ही वेंट टुवर्ड्स कॉलेज ता टुवर्ड्स नाल की हुंदा है कि टुवर्ड्स दे थ्रू तुसी सिर्फ डायरेक्शन ही कन्फर्म हुंदी है डेस्टिनेशन कन्फर्म नहीं करता टुवर्ड्स ता मतलब आप ये बोल सकते हैं कि वो कॉलेज दे बल चल गया कॉलेज की तरफ वो चला गया हो सकता है वो आगे से रेलवे स्टेशन की तरफ मुड़ गया हो तो हमें वहां पे टुवर्ड्स लगाने से कॉन्टेक्स्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें सिर्फ डायरेक्शन कंफर्म है डेस्टिनेशन उत्थे कंफर्म नहीं होती है ध्यान रखियो जी क्वेश्चन नंबर 26 मरीनल एंड सोनल हैड टी एंड के बाद इमीडिएट एक्शन के लिए हमें यहाँ पे देन को ही लगाना है आफ्टर देन लगाने की कोशिश मत करना आफ्टर नहीं आएगा मरीनल एंड सोनल हैड टी एंड then went for a movie immediate action right chalo we must to try to get home अब बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पे बाय टाइम लगाएंगे एट टाइम लगाएंगे ठीक है एट नहीं लगेगा स्टूडेंट्स ठीक है बाय द टाइम होता है छोटी छोटी गल्लां जिथों एलिमिनेशन की जाती है ऑप्शंस राइट सो इट्स नॉट एट टाइम इट्स नॉट बाय टाइम बाय द टाइम होता है तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा हमारा प्रपोजिशन in time आएगा students come to the question number next the president of India is invested अब ये जो invested word है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ preposition with fixed preposition ਹੈ ਜਿਹਦਾ according ਦੇ ਨਾਲ to ਲਿਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ invested ਦੇ ਨਾਲ with ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ full with ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ invested with meaning full with ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ the store house was invested with rats ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਹਾਊਸ ਹੈ ਗੋਦਾਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੋਡਾਊਨ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਚੂਹਿਆਂ ਨਾਲ ਰੈਟਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ the store house was invested with rats right तो ये आपने ध्यान रखना है यहाँ पे with आ जाएगा full with इसका मतलब होता है जी full with इसका मीनिंग है स्टूडेंट्स full with और एक आपका cater to भी होता है ध्यान रखियो कैटर टू ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਫੁੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਕੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੂ ਲਗਾਣਾ ਹੈ ਕੈਟਰ ਟੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੁੱਲ ਵਿਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ क्वेश्चन नंबर 29 the man is सिंपल ऑप्शन है जी watching seeing in जनरल लगता है see वर्ब in जनरल लगाते हैं ठीक है लिसन आपको पता है ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है जी सिंपल सा क्वेश्चन है 30 the court is not concerned dash political status of the accused तो राइट आंसर की बनेगा स्टूडेंट्स कंसर्न दे नाल लग दिया preposition about the court is not concerned about political status of the accused next we are ready for simple है if one wishes to apply पिछली क्लास भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਦ ਆਪਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਗਾਉਂਦੇ apply for ਰਾਈਟ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਾਰਡਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਗਾਉਂਦੇ apply to ठीक है the accused applied to judge for pardon right apply to उस context में लिखा जाता है 33 कहता the quality of dash between individuals and the organization of which they work can be dashed to the benefit of both the parties the quality of work quality of life quality of interaction अब इथे डबल फिलर च की ਹੁੰਦਾ स्टूडेंट ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗਰੋਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵਰਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਰੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਦੀ ਉਹ ਗਰੋ ਗ੍ਰਿਊ ਗਰੋਨ ਹੁੰਦਾ ਗਰੋਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਫਿਲਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਦ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਬਚਿਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ कैन दे नाल पैसिव वॉइस इथे B3 लगनी चाहिए तो इथे आंसर आएगा C डेवलपमेंट नहीं हो सकता पैसिव मोड स्टेटमेंट जारी है व्हिच दे कैन बी डेवलप्ड होता तो आप सोच दे इंप्रूव्ड आएगा the quality of interaction between individuals and the organization of which they work can be improved to the benefit of both the parties next सपना reached हुन देखो इथे डायरेक्शन पढ़ लियो आगे कहता फाइंड आउट एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਰਰ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੀਚਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਟ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਟ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਹੂਗੀ, ਬਟ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਪਨਾ ਰੀਚਡ ਐਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਦੋ, सीधा होगा सपना रीच्ड न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन एट 10 AM। आगे देखो जी, आई मेट संजना अपॉन द वे, बड़ा इजी क्वेश्चन है जी, इट्स नॉट अपॉन द वे, सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, इधर राइट आंसर बनेगा बी, इट शुड बी ऑन द वे, ऑन द वे होता है, अपॉन द वे गलत। नेक्स्ट, she you and I will manage this problem together। प्रोनाउन चैप्टर च तुसी पढ़िया होना कि she साडा थर्ड पर्सन है, you साडा सेकंड पर्सन है, I साडा फर्स्ट पर्सन है, तो 3 2 1 ये कोई रूल इंग्लिश से है ही नहीं। जब भी when 3 different pronouns ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਲਗਾਣੇ ਹੋ और पॉजिटिव इंटेंशन ਦੀ ਵਾਕੇ ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੂਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ 2 3 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ she you and I will manage this problem together, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ 2 3 1 ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ठीक है। तो ये सीक्वेंस इथे गलत है, तो एरर साडा इथे बी पार्ट बनेगा, यू नु तुसी पहले चुको, शी नु बाद च लेके आओ, यू शी एंड आई। सो 2 यू हो गया, शी 3 हो गया, आई फर्स्ट हो गया। जेडी पहला पर्सन हुंदा जे तुसी मिस्टेक ते हो, तुसी गलती कर रहे हो कोई, ठीक है, अगर आपका उसमें कोई फॉल्ट है, ठीक है, या आप नेगेटिव इंटेंशन की बात कर रहे हो, तो उत्थे फिर लिख लगांगे अपन 1 2 3। सो पॉजिटिव इंटेंशन में 2 3 1 याद रखना है, और नेगेटिव इंटेंशन 1 2 3 रूल चलता है। प्रोनाउन दा जेडे पर्सन हुंदे उन्हां दा ये सीक्वेंस दस्सिया जी बुक्स च, राइट। नेक्स्ट कहंदा रमन डेवलप्ड द हैबिट फॉर स्लीपिंग, हैबिट फॉर स्लीपिंग या हैबिट ऑफ स्लीपिंग, इट शुड बी ऑफ स्लीपिंग। रमन डेवलप्ड द हैबिट ऑफ स्लीपिंग। नेक्स्ट, शी हैज बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम कहंदा फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, ड्यूरेशन है लॉन्ग टाइम के साथ प्रपोजिशन फॉर लिखते हैं स्टूडेंट्स। शी हैज बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट शुड बी फॉर अ लॉन्ग टाइम, नॉट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। तो आंसर बनेगा सी, फ्रॉम को ड्रॉप करें और यहां लिखें फॉर। नेक्स्ट, व्हेन आई वेंट टू हर होम शी इंट्रोड्यूस्ड मी, आगे कहंदा विद हर मदर, तो विद गलत है स्टूडेंट्स, इथे आंसर होना चाहिए साडा इसका राइट आंसर बनना था टू हर मदर आना था, उथे विद हर मदर उथे नहीं आना, राइट। तो ये साढ़े 30 40 के अराउंड मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए। व्हेन आई वेंट टू हर होम शी इंट्रोड्यूस्ड मी, इट शुड बी टू हर मदर। लास्ट एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, क्वेश्चन नंबर 40, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 40 नंबर क्वेश्चन कई बार स्टेट ते एसएससी से पूछा जा चुका है, preposition का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। you should not discuss about a matter with friends who are likely to find it offensive। so there are some transitive verbs in English, there are some intransitive verbs in English। transitive verbs वो verbs होती हैं स्टूडेंट्स जो डायरेक्ट अपने बाद ऑब्जेक्ट लेंदी हैं, उन्हां दे विचाले तुसी preposition नहीं लगांदे कदे, ठीक है। transitive verbs दे नाल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखे जांदे हैं। जे हुण तुसी डिस्कस तो बाद अबाउट preposition पा दोगे ना इत्थे, पर क्योंकि डिस्कस जेडी वर्ब है ये ट्रांजिटिव है, राइट। इस तो बाद अ मैटर तुसी डायरेक्ट लिखना है, अबाउट नहीं लगदा। कुछ इदा दी वर्ब्स हुंदी जेडी ट्रांजिटिव हुंदी और उन्हां दे बाद आपां कदे prepositions नहीं लगांदे, जिदा एंटर है, एम्फेसाइज है, रिजेंबल है, स्ट्रेस है, डिस्कस है, डिस्क्राइब है, इन्हां दे नाल preposition नहीं लगदी। तां इसदा जेड़ा राइट आंसर है वो है सी पार्ट, सी बनेगा। ये अबाउट तुसी इत्थे कट दो, सीधा होएगा you should not discuss a matter with friends who are likely to find it offensive, right। तो डिस्कस दे नाल कदे अबाउट नहीं लिखा जांदा, क्योंकि डिस्कस एक ट्रांजिटिव वर्ब्स है। पर एक दूसरा रीजन और भी है, डिस्कस दा मतलब अपने आप ही टॉक अबाउट होता है, एक्चुअल च अबाउट डिस्कस दे अंदर ही होता है। नॉर्मल आपा फ्लो च बोल देंदे हैं जी स्पीकिंग च, ठीक है। डिस्कस अबाउट एंटर दे नाल भी लोग इनटू लगा देंदे हैं, बट एंटर इनटू फिजिकल एंट्रेंस कदे नहीं लगदा, ध्यान रखियो, ठीक है। आई टोल्ड यू, तो कदे आपा इदा तो कहंदे नहीं आई टोल्ड टू यू, राइट। आई टोल्ड यू इन दैट, आई टोल्ड टू यू कदे भी नहीं होता।
ठीक है जी, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ठीक है, मैंने आपको 20 अगले क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। 2020 के 2 सेट बना के 2 क्लासेस में आपको क्वेश्चन करवा दिए स्टूडेंट्स। 20 क्वेश्चन आप पिछली क्लास से कितने सी ते 40 तक आप अज दी क्लास से कुछ एरर्स दे क्वेश्चंस ते कुछ आप फिलर्स दे क्वेश्चंस कीते हैं। तो अज दे सेशन च इन्ना ही रहूगा। 2 जनवरी याद रखियो, ठीक है, जो तुसी एनरोलमेंट कराना चाहते हो तो करा सकते हो। ऑनलाइन ते ऑफलाइन दोनों ही मोड दे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं ज्ञानम अकेडमी। ठीक है जी, सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।